Hello and welcome to Clarity for UPSC. I am Dr. Shivan. April and May are the most crucial months for UPSC prelims 2026. अगर आप अपने previous attempts को याद करोगे, you would realize that it is in these months that we generally panic. We have an overload of syllabus, overload of facts that we have to complete here, and because of lack of a structured plan, we generally end up not putting our best foot forward in the prelims. That ends today. Today, I unveil to you, with your permission, the plan for the last 2 months for an active revision that will ensure that we have our best foot forward. अप्रैल एंड मई बहुत क्रूशियल हैं, ये बात हम सबको पता है. देयर इज टू मच टू रिमेंबर एंड देयर इज टू लिटिल टाइम. इसी के लिए मैंने आपको बहुत पहले शुरू से, आई थिंक फ्रॉम नवंबर आई हैव बीन सेइंग दिस ऑन यूट्यूब दैट वी हैव टू कंप्लीट एवरीथिंग बाय 31st मार्च. प्लान क्या था टिल 31st मार्च कि स्टैटिक पोर्शन हमें कंप्लीट करना है. वी हैव टू कंप्लीट ऑल द कोर सब्जेक्ट्स एट लीस्ट वंस. We have to cover the PYQs of these subjects at least once. Current affairs till the month of December we have to complete. ठीक है, कुछ updated current affairs जरूर हमारे बचे होंगे. And we have to at least practice some CSAT. If this is something that you have achieved, or if you have achieved even 70% of this plan is for you. अगर आपने ये काम अभी नहीं किया है, please don't be disheartened. Follow your own strategy. But this plan that I'm going to talk about is specifically for people who have managed this. In all of our batches at Sarthi IAS, this has been our target कि 31st मार्च तक सब कुछ खत्म होगा, and we have delivered on the same as well. जितने मेरे स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं उनको आई एम श्योर ये बात पता है. बार बार हमने ये बात करी है कि 31st मार्च तक ये चीज़ें हम कंप्लीट करेंगे. एंड अब अगर आप इस पोजीशन में हैं, दिस इज प्रोबेबली द बेस्ट पॉसिबल पोजीशन यू कैन बी इन. इस पोजीशन से अब अपनी इस लीड को लेवरेज कैसे करना है और कैसे इंश्योर करना है कि हम प्रीलिम्स में अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखें और लास्ट अटेम्प्ट के ऊपर हम इंप्रूव करें. देखिए, ये कोई नहीं बता सकता कि प्रीलिम्स क्लियर होगा या नहीं. हमारे हाथ में सिर्फ इतना है कि हम अपना बेस्ट अटेम्प्ट दें. दैट इज व्हाट वील अंडरस्टैंड हियर. So if you are somebody who has achieved about 70% of this target, this video is absolutely for you, and I will sort out the next 2 months for you in this video. अब अगले 2 मंथ्स में हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, क्या क्या चाहिए हमें. सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि हमें रिविजन करनी है. जो भी हमने पढ़ा है उसकी रिविजन करनी है, चाहे वो स्टैटिक हो चाहे वो करंट अफेयर्स हो. ऑलवेज रिमेंबर, स्टैटिक इज 80%, करंट अफेयर्स इज 20%, और इसको इसी हिसाब से हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. Second, we need to practice PYQs again, especially in the month of May. We want that we are only looking at UPSC questions. जैसे UPSC questions पूछता है हम उसी को देखें ताकि उस लैंग्वेज को हम थोड़ा सा attuned हो जाएं. Then we definitely need to practice some tests, and these need to be full length tests and full syllabus tests. It should also be that these tests are more aligned to the UPSC pattern. If I am able to give a GS test in the morning from let's say 9 to 11 and a CSAT test from let's say 2 to 4, this would be the best way forward. क्योंकि एक्चुअल प्रीलिम्स वाले दिन में भी इन्हीं टाइमिंग्स के आसपास टेस्ट होता है, so I have to practice tests accordingly. CSAT practice would also get incorporated here. And जो updated current affairs है, updated current affairs से मतलब है current affairs of the months of January, Feb and March. This is something that we have to study in this time. इन सारी चीज़ों को कैसे incorporate करना है इसकी मैं अब बात करूँगा. पहली रिक्वायरमेंट थी हमारी रिवीजन. रिवीजन का बाय फार द बेस्ट मेथड इज एक्टिव रिकॉल. एक्टिव रिकॉल सिर्फ ऐसी चीज नहीं है जो आप मेरे साथ करें. आई वुड से दिस ओपनली नाउ दैट सेल्फ रिवीजन इज द बेस्ट रिवीजन. तो पहली चीज हमें दिमाग में रखनी है कि हमें रिवीजन करनी है. इसमें हम दो चीजें करेंगे. आई विल हैव सम एक्टिव रिकॉल सेशंस विद यू एंड यू विल डू सम एक्टिव रिकॉल बाय योरसेल्फ. अब ये करना कैसे है, दिस आई वुड गाइड यू. राइट, हाउ डू यू एक्चुअली यूज दिस एक्टिव रिकॉल टेक्निक बाय योरसेल्फ ताकि सब्जेक्ट्स को आप जल्दी जल्दी खत्म कर सकें. द प्लान हियर इज टू हैव 3 साइकिल्स ऑफ रिविजन इन द मंथ्स ऑफ अप्रैल एंड मई, ताकि जो हमने पढ़ा है उससे हमारा क्वेश्चन कोई गलत नहीं होना चाहिए. फर्स्ट रिक्वायरमेंट. सेकंड इज PYQs प्रैक्टिस. ये तो ऑब्वियसली हमें करना ही है. जितना ज्यादा हम PYQs को प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा वी विल बी मोर अट्यून टू UPSC's लैंग्वेज. थर्ड रिक्वायरमेंट इज टेस्ट. देखिए, वी हैव टू अधेयर टू द UPSC पैटर्न. अब टेस्ट में यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है कि हम रैंडम टेस्ट सीरीज लगा लेते हैं या रैंडम सिमुलेट कर लेते हैं टेस्ट को. दुनिया में कोई भी ऐसी कोचिंग नहीं है
जो यूपीएससी जैसा टेस्ट बना सके, इन द सेंस कि उनके क्वेश्चंस एग्जैक्टली यूपीएससी में आ जाए। ऐसा आपने पहले भी देखा है, ऐसा आगे भी होता रहेगा। सो व्हाट शुड बी आवर आइडियल स्ट्रैटेजी व्हेन वी आर गोइंग फॉर दीज टेस्ट? द आइडिया शुड बी कि देखो यार, पहले तो टेस्ट के क्वेश्चंस उन्हीं सोर्सेज से होने चाहिए जो हमने पढ़े हैं, राइट? अल्टीमेटली the sources should be the same that we have studied. पॉलिटी के क्वेश्चंस इस टाइम पे लक्ष्मीकांत से होने चाहिए, इकोनॉमी के क्वेश्चंस कंसेप्चुअल होने चाहिए, मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस स्पेक्ट्रम से होने चाहिए। क्यों? क्योंकि एक्चुअली जब आप पेपर में जाते हो, आप लक्ष्मीकांत के क्वेश्चन गलत करते हो तो आप प्रीलिम्स में फेल होते हो, आप स्पेक्ट्रम के क्वेश्चन गलत करते हो तो आप प्रीलिम्स में फेल होते हो। कभी भी हम किसी रैंडम आउट ऑफ द वर्ल्ड क्वेश्चन की वजह से फेल नहीं होते हैं, वो कट ऑफ को इंपैक्ट नहीं करते। हमारा गोल यहाँ पर क्या है कि यार जो मैंने पढ़ा है उससे कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। सेकंड, करंट अफेयर्स का बहुत फियर रहता है, तो करंट अफेयर्स का भी ऐसा टेस्ट होना चाहिए जो उन्हीं सोर्सेज से हो जो हमने पढ़े हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन टीचिंग द करंट अफेयर्स ऑफ साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट एंड इकोनॉमी इन प्रीलिम्स नेविगेटर एज वेल एज इन फाउंडेशन ऑफ सारथी आईएएस। तो ये जो करंट अफेयर्स हैं उन्हीं से हम आपके टेस्ट बनाएंगे। नाउ टेस्ट विल बी सोर्स्ड फ्रॉम द मटेरियल दैट वी हैव स्टडीड, हैविंग अ 60-40 स्प्लिट, एंड वही सोर्सेज से क्वेश्चंस होंगे जो आपने पढ़े हैं। इसमें आइडियली द गोल शुड बी कि यार अवॉइडेबल मिस्टेक्स कम करनी है, रैंडम क्वेश्चंस हम टेस्ट में बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इज सीसैट। अब अच्छे स्टूडेंट्स भी सीसैट में फेल होते हैं क्योंकि हम इसको इग्नोर करते हैं। तो सीसैट की प्रैक्टिस कैसे करनी है? देखो यार, अगर मैं आपको बोलूं कि सुबह उठ के सीसैट का टेस्ट करो तो शायद आप बहुत अच्छे मार्क्स ले आओगे। द प्रॉब्लम ऑन द प्रीलिम्स डे इज दैट सीसैट डज नॉट हैपन इमीडिएटली इन द मॉर्निंग, इट हैपन्स आफ्टर यू हैव गिवन द जीएस पेपर। आप जीएस पेपर देके आए हो, ठीक है, योर ब्रेन इज ऑलरेडी टायर्ड, वहां पर 3 आवर्स का ब्रेक होता है, उस ब्रेक में आप अपना लंच करते हो, आप थोड़ा सा जीएस के बारे में सोचते हो, और फिर जाके आपको सीसैट का पेपर देना है। तो हमें इस चीज की प्रैक्टिस करने की जरूरत है, एन इफेक्टिव सिमुलेशन ऑफ दैट डे, कि सुबह जीएस शाम को सीसैट। ऐसी प्रैक्टिस करेंगे तो द प्रीलिम्स डे विल बी लाइक जस्ट अनदर डे फॉर अस, कि हर संडे यार मैं सुबह जीएस का पेपर देता हूँ, शाम को मैं सीसैट का पेपर देता हूँ, मैं उसी को रिपीट कर रहा हूँ, राइट? So this is the idea that you should have for CSAT practice. And number 5, of course, is updated current affairs for the months of January, February and March. इनके करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट हैं, ऐसा नहीं है कि इन करंट अफेयर्स को आप इग्नोर कर सकते हो, बट माय रिकमेंडेशन वुड बी कि इस टाइम पे कोई बहुत ज़्यादा क्लासेस देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हैं भी क्लासेस तो उनको रिकॉर्डेड 1.5x पे अपनी स्पीड के हिसाब से हमें देखना है। Now looking at all these requirements, I have come up with a plan for the months of April and May, and this is called step phase 2. For anybody who has studied from me, not studied from me, this plan is for you. This is a completely free initiative that I will run on Telegram and YouTube. There is no charge or anything that we are charging for this. The idea here is to have a best possible strategy for the last 2 months. अब इस प्लान को हम एग्जीक्यूट कैसे करेंगे इस बारे में हम बात करते हैं। So the plan ahead looks something like this. ये प्लान है, इसको धीरे धीरे डिटेल में समझते हैं। हमने सोचा है कि 3 साइकिल्स ऑफ रिवीजन हम करेंगे। 3 साइकिल्स ऑफ रिवीजन कैसे होंगी? कि पहले हर सब्जेक्ट को हम 2 to 3 डेज में खत्म करेंगे। सो द आइडिया हियर इज, फर्स्ट वी फिनिश एवरी सब्जेक्ट इन अबाउट 3 डेज। इन 3 डेज में मैं क्या करूंगा? आई विल रिवाइज माई स्टैटिक कॉन्सेप्ट, आई विल रिवाइज करंट अफेयर्स टिल डिसम्बर, एंड आई विल रिवाइज PYQs। 3 डेज में मैं हर सब्जेक्ट को ऐसे मैनेज करूंगा। कुछ सब्जेक्ट्स में हो सकता है कि मैं सिर्फ 2 डेज लगाऊं क्योंकि वो सब्जेक्ट्स छोटे हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर इकोनॉमी यू वुड नीड 3 डेज, फॉर साइंस एंड टेक यू वुड नीड ओनली 2 डेज। अब 3 दिन में पूरा सब्जेक्ट कैसे रिवाइज होगा? दैट इज वाई आई एम हियर, एंड दैट इज वाई आई विल हैव एक्टिव रिकॉल सेशंस एंड मेंटरशिप सेशंस विद यू ऑन यूट्यूब। ये एक्टिव रिकॉल और मेंटरशिप सेशंस का आइडिया यही है कि थोड़ी सी एक्टिव रिकॉल मैं आपको करवा दूं व्हेन यू आर स्टार्टिंग अ सब्जेक्ट, और मेंटरशिप में मैं आपको बता दूं कि यार जो अगले 3 दिन हैं उसमें रिवीजन को कैसे मैनेज करना है। जो मैं सेल्फ एक्टिव रिकॉल की बात कर रहा था उसको कैसे एनफोर्स करना है, ताकि हम जल्दी से जल्दी 3 दिन में अपना पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकें। Then once this first phase is complete, then I go for a second phase where I try to now finish subjects in 2 days. पहले अगर मैंने इकोनॉमी 3 दिन में करा था,
अब मैं इकोनॉमी 2 दिन में करने की कोशिश करूंगा। अगेन द आइडिया रिमेन्स द सेम, आई विल फोकस ऑन माई वीक एरियाज, स्टैटिक, करंट अफेयर्स एंड पीवाईक्यूज, और यहाँ पर मैं अपडेटेड करंट अफेयर्स को भी रिवाइज करूंगा। एंड फाइनली आई रिवाइज ऑल सब्जेक्ट्स इन वन डे। अब वन डे में पूरी रिविजन नहीं हो सकती, बट यू कैन ऑफ कोर्स लुक एट ब्रॉड कॉन्सेप्ट्स, यू कैन लुक एट दोज एरियाज जो आपको लगता है कि यार ये मेरे लिए वीक हैं। दिस इज द ब्रॉड प्लान दैट आई हैव फॉलोड। नाउ एक और रिक्वायरमेंट थी यहाँ पे कि यार मुझे टेस्ट करने हैं, सो वी विल हैव फुल लेंथ टेस्ट which are full syllabus tests exactly in the UPSC form on Sundays. Sundays को हम क्या करेंगे कि सुबह 9 to 11 में आपका टेस्ट है ऑफ जनरल स्टडीज। एक्चुअली आई थिंक द टाइमिंग इज 9:30 to 11:30 एग्जैक्टली जो यूपीएससी टाइमिंग है। 3 आवर्स का फिर ब्रेक लेंगे और फिर हम सीसैट का टेस्ट देंगे फ्रॉम 2:30 to 4:30। एंड जो बचा हुआ संडे होगा उसको हम यूज करेंगे फॉर टेस्ट एनालिसिस। तो ये मेरी टेस्ट की रिक्वायरमेंट और सीसैट की रिक्वायरमेंट यहाँ पर मीट हो गई। फॉर अपडेटेड करंट अफेयर्स आई विल बी रिकॉर्डिंग द लेक्चर्स ऑफ करंट अफेयर्स एंड अपलोडिंग देम। सो आई विल बी रिकॉर्डिंग द अपडेटेड करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स के बारे में आई विल बी सून मेकिंग अनदर वीडियो। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। आई विल बी रिकॉर्डिंग अपडेटेड करंट अफेयर्स एंड अपलोडिंग देम फॉर द मंथ्स ऑफ जनवरी, फरवरी एंड मार्च। तो ये जो अपडेटेड करंट अफेयर्स वाली प्रॉब्लम है, ये करंट अफेयर्स वाली प्रॉब्लम भी हमने सॉल्व कर ली। दिस इज द ब्रॉड आइडिया। नाउ हाउ हैज दिस आइडिया बीन पुट ऑन पेपर, उसकी बात करते हैं। तो लेट्स से आई स्टार्ट इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड दिस प्लान स्टार्ट्स इन अप्रैल। क्या कहानी है यहाँ पे कि ठीक है, मैंने अप्रैल में स्टार्ट किया। ऑन 1 अप्रैल द फर्स्ट 3 days आर डेडिकेटेड टू पॉलिटी। अब पहले 3 दिन मुझे पॉलिटी पढ़ना है, तो हमारा एक दिन यहाँ पर पॉलिटी का एक्टिव रिकॉल हो गया। आई विल टेक अबाउट 2 to 3 आवर्स ऑफ योर टाइम और पूरा सिलेबस थ्रू 70 to 80 क्वेश्चंस हम रिकॉल कर लेंगे। एंड आई विल टेल यू कि यार अच्छा अब अगले 3 दिन में आपको कैसे पढ़ाई करनी है। आपको ये ब्रॉड आइडिया मिल गया, ठीक है। अब हमारे इकोनॉमी पे 3 days वी हैव फॉर इकोनॉमी। संडेज को एज यू कैन सी फुल लेंथ टेस्ट आर शेड्यूल्ड ऑफ बोथ जीएस एंड सीसैट, ठीक है। अब ये जो इकोनॉमी के 3 दिन हैं, इसमें आई एम नॉट डूइंग एन एग्जैक्ट एक्टिव रिकॉल सेशन, आई एम एक्चुअली डूइंग अ करंट अफेयर्स रिविजन सेशन। व्हाई? क्योंकि इकोनॉमी का 12 आवर मैराथन सेशन में ऑलरेडी लास्ट ईयर ले चुका हूं, जिसमें कि आई हैव कवर्ड द एंटायर स्टैटिक सिलेबस। तो अगर आप चाहें तो उसको यूज करके, और वो वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है एंड आई विल गिव यू ऑल द रिक्विजिट लिंक्स आल्सो, उसको यूज करके आप आराम से इकोनॉमी के स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर सकते हैं। करंट अफेयर्स मैंने जो इस बार पढ़ाया है, I will be teaching the current affairs that I have taught. This is specifically relevant for those जिन्होंने सारथी आईएएस से करंट अफेयर्स पढ़ा है या मेरे करंट अफेयर्स को पढ़ा है। You can use these videos। नहीं तो आपने जहां से करंट अफेयर्स पढ़ा है आप उस डॉक्यूमेंट को फॉलो करिए। Do not pick up anything new at this time। अगर आपने करंट अफेयर्स बिल्कुल नहीं पढ़ा है अभी तक, हो सकता है आपने खोला ही नहीं है, then you can follow this revision session। लेकिन if you have studied from any other compilation, किसी इंस्टीट्यूट से अगर आपने पढ़ा है, आप उसको फॉलो कर लीजिए, that's absolutely fine। सारथी आईएएस का कंपाइलेशन पढ़ा है, किसी भी सारथी आईएएस के कंपाइलेशन के थ्रू आपने पढ़ाई करी है, दिस विल वर्क फॉर यू, ठीक है। अब 3 दिन हमने इकोनॉमी के लिए रखे, इसमें एक दिन मैंने आपको बैठ के आई विल सिट विद यू फॉर 6 आवर्स लाइव ऑन यूट्यूब, और आपको पूरा करंट अफेयर्स में रिवाइज करा दूंगा, ठीक है। 6 आवर्स मैं पढ़ाऊंगा आपको, 6 आवर्स आप उस दिन खुद पढ़ेंगे, एंड इन वन डे वी विल रिवाइज द एंटायर करंट अफेयर्स, ओके। फिर आता है मॉडर्न हिस्ट्री। अगेन मॉडर्न हिस्ट्री में हमारे पास 3 दिन है। एक दिन है आप जिस दिन मैं आपके साथ एक्टिव रिकॉल करूंगा, और बाकी 2 दिन आप खुद से पढ़ाई करिए। देन वी हैव ज्योग्राफी एंड मैपिंग आई हैव क्लब्ड टुगेदर। 3 days फॉर ज्योग्राफी, 1 day फॉर मैपिंग, और इसमें भी एक दिन हम ज्योग्राफी का एक्टिव रिकॉल करेंगे और बात करेंगे कि ज्योग्राफी को कैसे पढ़ना है। देन वी हैव साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक के लिए मैंने 2 दिन रखे हैं, बिकॉज इट इज अ रिलेटिवली स्मॉलर सब्जेक्ट एज कंपेयर टू इकोनॉमी, पॉलिटी और ज्योग्राफी। तो साइंस एंड टेक में अगेन I have already taken a marathon session this year as well and last year as well on science and tech। तो एक्टिव रिकॉल के लिए आप वो वाला सेशन देख सकते हैं। लेकिन करंट अफेयर्स की प्रॉब्लम होती है, तो करंट अफेयर्स का अगेन आई विल हैव अ 6 hour रिविजन सेशन ऑफ करंट अफेयर्स विद यू ऑन दिस डेट विच इज 16th of April। और 6 घंटे बैठेंगे और करंट अफेयर्स हम रिवाइज कर लेंगे। 6 घंटे मैं आपको पढ़ाऊंगा, 6 घंटे आप पढ़िए, एक दिन में पूरा करंट अफेयर्स रिवाइज होना चाहिए। देन वी हैव एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर, बड़ा सब्जेक्ट है, तो इसका एक एक्टिव रिकॉल सेशन करेंगे अबाउट 3 आवर्स, और बाकी टाइम आप खुद से पढ़ाई कर सकते हैं। सेम फॉर एनवायरनमेंट,
3 डेज मिले, बड़ा सब्जेक्ट है, एक दिन बैठ के मैं आपको करंट अफेयर्स की रिविजन करा दूंगा। वाई? बिकॉज द एक्टिव रिकॉल सेशन इज ऑलरेडी ऑन यूट्यूब, और करंट अफेयर्स की यहाँ प्रॉब्लम रहती है, जो करंट अफेयर्स मैंने पढ़ाए हैं मैं उन्हीं का ही यहाँ पर रिविजन सेशन कर रहा हूँ। तो आई हैव अ एनवायरनमेंट करंट अफेयर्स रिविजन सेशन एंड 3 days टू स्टडी एनवायरनमेंट। ब्रॉडली आइडिया सॉर्टेड। देन वी हैव IR फॉर 2 days, इसका भी हम एक्टिव रिकॉल सेशन करेंगे। एंड देन ऑन 27th April आवर फर्स्ट साइकिल ऑफ रिविजन इज कंप्लीट। 9 सब्जेक्ट हैं, 9 के 9 सब्जेक्ट्स मैंने कर लिए, एंड 27th April को मेरा फर्स्ट साइकिल ऑफ रिविजन कंप्लीट हो गया, जहां मैंने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लिए। डन। अब मैं स्टार्ट करूंगा अपना सेकंड साइकिल ऑफ रिविजन फ्रॉम 28th। अब मैं हर सब्जेक्ट को, जैसे हमने बात की थी, हर सब्जेक्ट को मैं अब 2 days में पढ़ने की कोशिश करूंगा। तो देखते हैं यहाँ क्या होगा। सो 28, 29 गोइंग फॉरवर्ड, in 2 days I will cover every single subject. This way I would have finished my second revision on the 14th. And then lastly I would go for a 1-day revision. 1-day revision में भी I will focus on the areas that are weak for me, या areas जो मुझे याद नहीं आते, जैसे पॉलिटी, इकोनॉमी, सबको एक एक दिन देंगे। इसमें भी एक लॉजिक यूज किया गया है। इफ यू सी टुवर्ड्स द एंड, सब्जेक्ट्स आर एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर, एनवायरनमेंट एंड IR, जिसमें चीजें जल्दी भूलती हैं। पॉलिटी कंसेप्चुअल है, अगर आप एग्जाम से एक हफ्ता पहले लास्ट रिविजन करके छोड़ दोगे तो आपको लास्ट डे पे याद रहेगा। एमैक हो सकता है आपको भूल जाए, एनवायरनमेंट हो सकता है आपको भूल जाए। तो सीक्वेंस इज ऑल्सो साइंटिफिकली डिजाइंड। दिस इज द ब्रॉड आइडिया हियर। अब इसको हम एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम और यूट्यूब पे, ठीक है। So the idea would be that I will just give you the link of the Telegram channel. You join the Telegram channel and I will give you daily targets here. कि यार आज आपने ये सारी चीजें रिवाइज करनी है, एंड अ कंप्लीट शेड्यूल ऑफ द सेशंस। जो भी सेशंस की मैंने यहाँ पे बात करी, उनका एक शेड्यूल मैं आपको यहाँ पर दे दूँ, राइट। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, जैसे मान लीजिए आपको एक करंट अफेयर्स की कंपाइलेशन चाहिए, ऑल ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स ऑल्सो आई विल अपलोड एंड गिव यू लिंक्स ऑन द टेलीग्राम चैनल, ठीक है। as frequently as possible I will also be posting voice notes here for you to know कि यार ठीक है, एक it's sort of a communication between the two of us। एक बार बात करना आसान हो जाता है, तो उससे क्या होता है कि हम थोड़ा मोटिवेटेड रहते हैं। ऑल दीज सेशंस जो मैंने बात करी है, चाहे वो एक्टिव रिकॉल हो, चाहे वो करंट अफेयर्स का 6 months का रिविजन हो, all of this I will be having on YouTube as live sessions। तो YouTube लाइव के थ्रू हम ये सारे सेशंस कर लेंगे और इस रिविजन प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। If you execute this revision plan, we will actually have a few advantages on our side. Number 1, हम random चीजें नहीं पढ़ेंगे। एंड में आपने याद होगा, एंड यू कैन टेल मी इन द कमेंट्स, जो हमारे प्रीवियस अटेम्प्ट्स थे उसमें हमने क्या किया कि यार लास्ट के 2 months में कुछ नई चीज पढ़ ली, कोई नया डॉक्यूमेंट पढ़ लिया, अपडेटेड करंट अफेयर्स से डर गए, वो सब नहीं करेंगे। स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग होगी और हमें पता होगा कि यार हम 3 बार रिवाइज कर रहे हैं। इफ वी एक्चुअली रिवाइज 3 times, we will ensure that on the day of the prelims जो हमने पहले पढ़ रखा है वो हमारा गलत ना हो। देन देर इज अ फिनोमेना कॉल्ड मे एंग्जाइटी। प्रीलिम्स से पहले मे में बहुत एंग्जाइटी होती है। तो अगर आप यहाँ देखोगे, मे में मैंने कोई खास सेशंस नहीं रखे हैं, सारे सेशंस मैंने अप्रैल में रखे हैं। मे इज द मंथ व्हेन यू शुड गिव टू योरसेल्फ। तो मे में मैं आपके साथ क्या करूंगा, इन द मंथ ऑफ मे आई विल ओनली मीट यू ऑन सैटरडेज इन लाइव सेशंस। और ये 3 जो सैटरडेज हैं मे में, इसमें हम लाइव सेशंस करेंगे वेयर वी विल जस्ट टॉक। आई विल नॉट टीच यू एनीथिंग। जो भी एक एंग्जाइटी, जो भी एक स्ट्रेस हमें आ रहा होता है, उसको हम यहाँ पर अलिविएट करने की कोशिश करेंगे, राइट। सो दीज 4 सैटरडेज, 23rd राइट बिफोर द प्रीलिम्स, ये 4 लाइव सेशंस मैं मे में भी रखूंगा आपके साथ, ताकि वी कैन कंसिस्टेंटली टॉक टू ईच अदर एंड इंश्योर कि यार हमें उतना स्ट्रेस नहीं हो रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। एंड दिस इज द आइडिया दैट वी विल कीप for the months of April and May. Now, if you want to execute and be part of this plan, there are a few disclaimers. Disclaimers के बाद ही आप ये प्लान ज्वाइन करने के बारे में सोचना। क्या डिस्क्लेमर्स हैं वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। नंबर 1, जो मेरा मार्च 31 तक का प्लान था, अगर आपने वो प्लान एग्जीक्यूट किया है, चाहे आपने प्रीलिम्स नेविगेटर में किया हो, चाहे सारथी आईएएस के फाउंडेशन में किया हो, चाहे आपने स्टेप के थ्रू किया हो या खुद से किया हो, अगर आपने मार्च 31 तक जो ओरिजिनल हमारी रिक्वायरमेंट्स थी, ये ओरिजिनल रिक्वायरमेंट्स अगर आपने इसका 70% मीट किया है, तभी आप इस प्लान को फॉलो करिए, नहीं तो अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो करिए। ऐसा नहीं है कि ये परफेक्ट स्ट्रैटेजी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी के थ्रू ही सिलेक्शन होता है, बट दिस इज द आइडिया दैट आई वांट टू हैव,
कि यार अगर आपने वो 31 मार्च तक मेरी बात सुनी है, आपने 31 मार्च तक ये चीज़ को सीरियसली लिया है, मैंने तो कई बार बोल दिया था दैट प्रीलिम्स इज ऑन 31 मार्च, ताकि हम अपने ब्रेन को इसके लिए ट्रेन कर लें कि यार 31 तक ये सब तो खत्म कर लें. इफ दिस इज समथिंग दैट यू हैव फॉलोड, then this is going to work wonders for you. So this is the first disclaimer. Second disclaimer is with regarding current affairs. अगर आपने कोई और करंट अफेयर्स का सोर्स फॉलो किया है अदर देन सारथी आईएएस, सारथी आईएएस की कंपाइलेशंस फॉलो किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी. कोई और करंट अफेयर्स का सोर्स फॉलो किया है तो स्टिक टू योर ओन सोर्स, इस पे जाने की जरूरत नहीं है. करंट अफेयर सेशंस उनके लिए रेलेवेंट हैं हु हैव स्टडीड फ्रॉम मी और हैव नॉट स्टडीड एनीथिंग टिल नाउ और हैव स्टडीड फ्रॉम सारथी आईएएस कंपाइलेशंस. यहां से आपने पढ़ा है तो करंट अफेयर्स में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. अगर आपने किसी और इंस्टीट्यूट की करंट अफेयर्स की कंपाइलेशन फॉलो करी है तो यू कैन स्टिक टू दैट, नॉट गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम. आप करंट अफेयर्स वाले दिन जब मैं अपने करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं, आप जिस कंपाइलेशन को आपने फॉलो किया है उसको फॉलो कर लेना. एंड लास्ट डिस्क्लेमर, एंड दिस इज प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट, this is going to be incredibly intense. If you are somebody who wants to complain कि नहीं यार मैं इतना नहीं पढ़ सकता, ये तो बहुत ज़्यादा है, अप्रैल एंड मई में तो मुझे थोड़ा रिलैक्स करना है या मुझे और चीज़ें करनी है वगैरह, इफ़ दिस इज समथिंग दैट यू हैव इन योर माइंड, प्लीज़ डोंट ज्वाइन दिस. देखिए बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव है, आप इसमें आके डिसहार्टन हो उससे बेटर है कि आप इसको ज्वाइन ना ही करो. ये मैंने उन लोगों के लिए बनाया है हु आर विलिंग टू गिव एवरीथिंग इन अप्रैल एंड मई टू इंश्योर कि हम अपनी बेस्ट फुट फॉरवर्ड रख सकें और बेस्ट मार्क्स प्रीलिम्स में ला सकें. देखो जब नीट या जेई का एग्जाम होता है ना, मैंने जैसे नीट का एग्जाम दिया था, तो टीचर्स जनरली 3-4 महीने पहले ही बता देते हैं कि आपकी क्या रैंक आने वाली है, क्योंकि वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे ज़्यादा बेस्ड है, उसमें मेमोरी का उतना ज़्यादा रोल नहीं है जितना यूपीएससी में है. यूपीएससी में मेमोरी का ज़्यादा रोल है, और क्योंकि मेमोरी इतनी ज़्यादा चाहिए तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए होती है, बिकॉज यू कांट मग ऑल दीज थिंग्स अप, राइट. So this is going to be fairly intense. You will have to study 10 to 12 hours daily. But I promise आपके prelims के outcome में definitely you will see an uptick. That is a promise, and that I can see even on the basis of my own scores and the results that we have shown this year. आपने कितने सारे टॉपर्स से भी सुना होगा कि लास्ट के मंथ में सर जो आप मैराथन और प्लान देते थे उससे बहुत फायदा हुआ. This is exactly that marathon and plan that I'm executing completely for free on YouTube. Now, how do you join this? There is a Telegram channel that is called Step Phase 2. The link is in the description. We will start on the 1st of April. 1st April को हम start करेंगे. 1st April को हमारा पहला सेशन होगा which is active recall session for polity. हमारे प्लान के हिसाब से इसी ग्रुप पे मैं आपको वॉइस नोट्स भी दूंगा और प्लान्स भी दूंगा, एंड दिस इज व्हाट यू अल्टीमेटली फॉलो. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस. आई होप दिस हेल्प्स, and let us make April and May the most intense study months possible. I want you to be the best version of yourself, and I will be the best version of myself to ensure that we clear prelims 2026. Thank you for watching. See you.